I would just give you in brief like what are the basic things one should do for prelims, mains and interview. Like the real competition is not the 10 lakh or the 5 lakh who are appearing. It is 20-30,000 people, I would say approximately, or maybe more than that or less than that. The goal is that whenever you are in the exam, your attitude should be jitna maine padh liya fine. Mains is the main thing in this exam. There was pre-Shruti Sharma era and post-Shruti Sharma era. Shruti Sharma ma'am has raised the level of answer writing to a different level. Like इस exam में hard work is important, तो no social media, nothing. आपके पास 2-3 अगर सीरियस दोस्त है वो भी यूपीएससी के हो या फिर कोई पुराना इफ ए गुड फ्रेंड हु अंडरस्टैंड, आप यू शुड बी इन द जोन 24/7. मेरे को है कि मेरे को एग्जाम निकालनी, रिजल्ट निकालना और भागना है यहाँ से. हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव प्रीलिम्स दिस ईयर 2026? Okay, so rest one are planning for the next year. Okay, so for prelims, there are three things that are very important. The first thing is the basics, like the questions that will directly come from Lakshmikant or G11 Geography NCERT. You should not make any mistake in that. Like there will be around say 40-50 questions that would directly from like books, and if you make mistake in that, you have very less chance of clearing it, because majority of the people who are the real competition. Like the real competition is not the 10 lakh or the 5 lakh who are appearing. It is 20-30,000 people, I would say approximately, or maybe more than that or less than that. But they are the real competition and they won't make mistake in that. So that is one thing that you should focus, that the basic things are 100% sure. And that is the goal of test series. Like the coaching test series is, the goal is that in that marks are not important. The important thing is ki I have read this concept of repo rate or anything, and if the questions come in the test, I am able to answer it. So that in the prelims also, if that is a foundational question, you are able to answer it. So that is the goal, that you should make less and less silly mistake in this direction. That only that you have a chance in the game. Second, for current affairs, limited, so only one source, limited, because the current affairs random question would be very less, like less than 10 maybe. So if you see that the majority of the paper is based on the foundational questions, and then some of the questions are current 5-10, and the rest of them are mix of both of the things, some would be random. And for the third type of questions, we need that MCQ aptitude. For that, PYQs are must. So PYQs you should do 5-10 times. Like rather than doing 2-3 test series of coaching, do the PYQ again. So buy that 10-year booklet 2013 to 2024, 2025, and do that again. Like UPSC pattern, proper 100 questions. Do that again and again. Try to understand the pattern. Don't think I know this question, I have seen this question. But the way the UPSC is asking the question, and the small thing that you will notice, like the constitution, ministry, few things. Like I will make the list of all them, but majority of the us people know. But like science and tech mein near some hoga to all of the hoga, that kind of thing. So you need to understand those things, like pattern and all. Like this time पर जैसे graphite का सवाल था last year, तो वहाँ पे आपको देखना था कि 3 मेटल एक नॉन मेटेलिक है, वहाँ पे ऑल ऑफ द नहीं माना. तो all these patterns you will realize when you will go through them very deeply. The goal is that whenever you are in the exam, your attitude should be जितना मैंने पढ़ लिया फाइन है. अब I will not think कि भाई यार एग्जाम में कोई आर्टिकल आ गया यार, मेरे को ये पार्ट याद ही नहीं आ रहा कि यार ये यूनियन टेरिटरी कौन से पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब हो गया. whenever you are going in the exam, you should be like जितना आता है उतना आता है. Now I have to maximize whatever I know. And for that, you need to have confidence in your foundational knowledge, and then that understanding of how UPSC frames the question. Because the way the coaching frames and the UPSC frame is very different. That's why you will see that those people who have understood the game, they will clear it again and again. Like last year, I missed forest by 1 mark, and this time I was able to clear forest very easily. So that way, those who have understood that it's mainly PYQ centric, that approach that, and your foundations are strong. So whenever you see a question, your first thing should be that with my foundational knowledge, am I able to do it? नॉट कि गेस कर रहे हैं कि भाई 4 का 2 होगा, 5 का 3 होगा, ये सब जो ट्रिक्स जो सबको ही पता चल गई, मतलब आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे ये सब है. तो बट दीज आर नॉट बेसलेस थिंग्स, बट द फर्स्ट थिंग शुड बी कि भाई फाउंडेशनल नॉलेज से मुझे क्या आ रहा है. भाई मेरे को मैपिंग का कोई सवाल आ गया, मेरे को 3 जो फेमस अमरकंटक माउंटेन है, तो ये तो मुझे पता होना ही चाहिए. अगर ये नहीं पता है तो यू आर नॉट इन द रेस. अगर बट ये पता है कोई एक रैंडम सा माउंटेन आ गया भाई कोई सदर्न स्टेट का, वो नहीं पता है, तो 3 में से 2 मुझे श्योर है, अब तीसरा मैं डाइसी हो रहा है कि भाई ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो फिर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि भाई मैं ओनली 2 मार देता हूँ, क्योंकि 3 सही होने के चांसेस बहुत कम है. हो सकता है गलत हो जाए, बट फिर वो ऑल्सो यू हैव टू गिव लाइक टेस्ट, ओपन टेस्ट और मॉक टेस्ट. द गोल फॉर देम इज टू गेट दैट एग्जाम प्रेशर. सो इन दैट ओपन मॉक टेस्ट ट्राई टू गिव लाइक अ रियल एग्जाम. सो हाउ मेनी क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट. लाइक आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो IIT, सो मेरा था कि मैं 90 के ऊपर अटेम्प्ट करूंगा, बिकॉज माई रैशनल वॉज कि मैं 60 भी करेक्ट कर लूँ, मतलब तो मेरे 100+ आ जाएंगे. But not everybody does that. I know a lot of friends of mine who have also cleared. They are from humanities background, so they prefer ki I will do 70-80, but their accuracy is very high. So my accuracy is very low. So maybe I take those guesses, don't leap of faith and all.
but don't do it too much and find a sweet spot for you. Because sometimes the paper is too easy, I will attempt 95, 96, but don't go too much कि भाई अब दिख रहा है कि भाई 5 का 3 मारे जा रहे हैं आखिरी के 5-10 मिनट के अंदर, ये नहीं करना है, बिकॉज फिर आपका 1-2 मार्क्स से छूट सकता है, क्योंकि वो 1 मार्क जो कट ऑफ है उसके 1 मार्क पीछे बहुत सारे लोग होंगे, लाइक 10, 20, 30, 40 हजार 50 हजार लोग होंगे. सो दैट वे यू डोंट हैव टू टेक दिस फालतू केसेस, बट अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाओगे तो फिर आप भी पीछे रह जाओगे. और लास्टली प्रीलिम्स में कुछ थीम्स होते हैं, प्रॉपर थीम्स, अलग अलग कोचिंग वगैरह सब दे देंगे, जो कॉमन थीम्स होते हैं. पॉलिटी का एक बेसिक सवाल पूछेंगे कि भाई नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, ज्योग्राफी सवाल आएंगे, मानसून जो भी. तो जब मैपिंग के हर साल सवाल आएंगे, तो जो मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे मैपिंग हो गया, आईआर हो गया, प्लेसेस हो गया, ये हो गया, और जो कॉमन थीम्स होती है जो बार बार आप देखते हो कि भाई ये थीम्स पूछ रहा है, वो थीम्स पे एक्स्ट्रा फोकस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऑल दिस थिंग्स, इन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है. सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, लेस इज मोर शुड बी योर फिलोसफी थ्रू आउट दिस एग्जाम, and PYQ centric. So for prelims, this is I would say, and the D-Day, like a lot of people crumble under the pressure. So that's why I'm saying ki the attitude whenever you're giving open test, give it like this is the real prelims. And also कि एग्जाम में चले गए और पहला ही सवाल बहुत बेसिक है यार, कि ये तो पढ़ाया था क्लास में, नोट्स में था, ये क्लाइमेट का था यार, कोपन क्लाइमेट, ये टॉपिकल क्लाइमेट है या वो मेरे को याद नहीं है. फाइन, यू डोंट हैव टू पैनिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो whatever you know, whatever you have to maximize and write as much as you can on paper. भाई मेरे को ये याद आ रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, राइट, लाइक इट इज रिटन दैट यू शुड नॉट राइट इट, बट द इन्विजिलेटर मे बी दे कैन से दैट डोंट राइट इट, बट यू हैव टू राइट एज मच एज यू कैन. थिंक यार ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, क्रॉस एवरी ऑप्शन. नेवर की देख के फर्स्ट ग्लांस में यार ये इसका तो 1 लग रहा है आगे मार, ऑलवेज क्रॉस ऑल द ऑप्शंस. भाई यार बी तो नहीं हो रहा, बी नहीं होगा गारंटी से, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा. सो दैट वे फिर अपने साइड डिसाइड करनी है कि यार मैं कितने राउंड में करूंगा, 1 राउंड में करूंगा, 2 राउंड, OMR कभी लास्ट में नहीं भरनी है. दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स, बट यू शुड प्रॉपर हैव अ स्ट्रेटजी on the D-Day, because like last year paper was very easy, 2025. 2026 could be very random, it could be very this thing, only 1, only 2, they can change pattern, they can create 3D table, T table. But the basic things, whatever I've said, they will remain the same. Those who will do this thing religiously, and on the day of the exam, he will not crumble, he will have confidence, and he will perform, relax, he will sail through it. Now, coming to mains. So mains is the main thing in this exam. Like prelims is, the only importance of prelims is that you will get a chance to write mains, and you can tell your parents that you are studying. So that that is but like mains is the real game, because rank भी main से decide होती है proper वगैरह. So mains एक बार आपका फाउंडेशन हो गया, लाइक आपको हर चीज के बारे में लगभग समझ आ गया, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत वगैरह 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया, चाहे आपको आर्टिकल वगैरह याद नहीं है कि भाई 293 आर्टिकल कौन सा था, ये कौन सा था, दैट इज फाइन, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये 3 ऑर्गन से ये सब बेसिक वगैरह, then I should say you should start writing. मतलब after foundation is complete, 1 hour one should write daily, because starting में सब खराब लिखेंगे, बहुत खराब लिखेंगे, but one has to write. Like मैं तो मैं कोटा में था बहुत साल, तो इंग्लिश वगैरह तो मेरा था ही नहीं, तो ऐसे में लिखता था तो इतने खराब लिखता था, but one has to start somewhere and write. So after a point, now तो अगर those who are giving prelims, they should shift to prelims more, but those who are attempting for the next year or future, mains you should be ready for mains, like ये तो सब December तक, because now that the 4 months gap has reduced to 3 months, so that way mains one should be ready for that, and for that the best thing is write mains. Even if you know everything, it doesn't matter, the presentation and everything matters. In fact, I feel ki I could have gotten even better rank just because I could not improve the presentation and handwriting thing. So all this matters, like every 1 half marks matter. In fact, the challenging thing in mains is like, if you ask any topper to give the exam again, maybe they will clear prelims, but for mains it's very dicey कि उनकी क्या रैंक आएगी, वो हो भी जाएंगे, लिस्ट में नाम होगा नहीं होगा, because मेंस में आपको हाफ मार्क के लिए फाइट करना है. सो मतलब लॉट ऑफ पीपल से फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट. अगर इफ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, 1 साल आपने प्रॉपर तैयारी करी और फिर 1 साल दिया, बिकॉज इन फर्स्ट अटेम्प्ट एवरीथिंग इज रोजी, एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग फील्स गुड, आंसर राइटिंग में भी मजा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बिल्कुल. बट जब आप वापस करने लग जाओ सेकंड, आपको समझ आता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम हो गई है, यू आर बहुत लेस इंप्रूवमेंट हो रहा है, लिखने का मन नहीं कर रहा, एंथुसियाज्म कम हो गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सब. सो दैट वे जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, स्टार्टिंग अटेम्प्ट से गिव एवरीथिंग, गिव दैट. और कमिंग बैक टू मेंस, आंसर राइटिंग, you have to write daily 1 hour, and lot of sources are there, lot of teacher will tell you, follow them, they are very they are telling you right thing, but you have to write by yourself, watching videos and all. In fact, after once you have watched anything's video foundation, you should not watch videos will be useless. If you have understood the concept, you should focus more on reading by yourself, writing by yourself. For mains especially, you have to write so much, like there is no chance, because in the exam, the 3 hours you have to write, like my thumb used to pain for like both years attempt, my thumb used to pain a lot, and like before 3-4 days, 5 days of exam, I was not able to even hold the pain.
Of course, in exam day, when you are in that mindset and survival and all, everything works, that's fine. But I'm telling you, you have to write that much in mains. And the earlier you start, it's like everybody has fear. Nobody will write good answers. पहले सब बड़े बड़े पॉइंट्स लिखेंगे, 3-4 पॉइंट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन बड़ा लिख देंगे, वो लिखेंगे जो हमने नोट्स में पढ़ा है, वो नहीं लिखेंगे जो पूछा है. These are all very common mistakes that everybody will do. But eventually you will understand iteratively. You should have one person who is mentoring you or who is analyzing your copies. या चेकिंग को डाल दो. मतलब पता नहीं मेंस टेस्ट सीरीज में कितने ही लोग टेस्ट सीरीज तो ले लेते हैं बट फिनिश कर पाते. लाइक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देना तो बहुत आसान है. मतलब इट्स वेरी इजी. मतलब मैं भी 1 मार्च को भी दे के आया था प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. बट मेंस टेस्ट सीरीज देना इज वेरी हार्ड. मतलब लोग कंप्लीट नहीं करते. आई डोंट नो 90% लोग कंप्लीट नहीं करते होंगे. आई डोंट हैव डेटा बट आई कैन से दैट फॉर लेके छोड़ देते हैं. तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा जरूर. सी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फाउंडेशन होते ही यू हैव टू स्टार्ट एनी मेंस टेस्ट सीरीज, राइट दोस आंसर्स. वो शेड्यूल फॉलो करो, उनका शेड्यूल फॉलो करो. अब शेड्यूल लाइक आई एम वेरी पुअर एट प्लानिंग. सो द बेस्ट थिंग इज वो जो बोल रहे हो वो प्लानिंग करो. इनफैक्ट especially in the 3 months of the prelims and mains gap, daily answer writing is absolute must. Like you have to write 1 hour, 1 hour, and if you do it beforehand, you will improve significantly in that duration. So, and the thing is, answer writing becomes more crucial in the topics that are not in prelims, like society, ethics. These are very game changer. Well, ethics mein, the answer you will write will be the worst in the first glance. Like they will be very poor. But you have to write. In ethics, there is no limit of improving. Like you can make an answer that is so rich, enriching, and so depth, content density, and answer very surface level. And only thing is, ethics mein, once you have done course, you have to write. And ethics is very high rewarding thing. Like if you put in effort, ethics will reward you. Ethics average score this year marks are not yet available, but last year 120 was the average score in ethics. So ethics is the most rewarding one. Society and all also, if you possible, society, security, all these main specific topic, try to finish it before December. Like if you are planning like way, I'm just telling you broad things. Essay also start writing. Every Sunday you should start writing. If you cannot write 2 essay at one time, write 1 essay, half essay, but start writing. The only way you will improve your articulation and all is by writing. And in essay you have to write, and I have personally feel that if you write more and more essays, you open up. You starting में you will need a framework. So whatever the teacher will tell you, you should follow that framework. कि भाई ऐसे करना है, एनेक्डोट से शुरू करना है, या फिर उसके बाद थीसिस को लिख देना है, फिर उसको कनेक्ट करना है, फिर इलेबोरेट करना है, क्वेश्चंस पूछे जाने, मतलब व्हाटएवर योर फैकल्टी हैज टोल्ड यू, बट फॉलो वन टेम्पलेट यू हैव टू फॉलो इन बिगिनिंग. देन कुछ बोलेंगे हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग बनाओ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बनाओ. So it's all fine, but after a point that you have written like 10, 15, 20 essays and you started to understand this thing, you open up. So you realize कि भाई मेरे को जरूरत ही नहीं सब हेडिंग की, मेरे को जरूरत है इस essay के अंदर. फिर आप अपने हॉबीज, जैसे मतलब इंटरव्यू जो प्रिपेयर कर लेता है उसमें डैफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो डैफ में जो हॉबीज होती है आप ट्राई करते हो उसको में लिखो अपने essay के अंदर, क्योंकि जो essay में टॉपिक्स होते हैं 8 होते हैं, बट जो पहले सेक्शन में 2 टॉपिक होंगे, दूसरे सेक्शन में 2 टॉपिक, 99% लोगों ने वही essay पे लिखा होगा. यू थिंक यू आर यूनिक, बट सब लोग वही लिखते हैं, सबका कंटेंट वही है, सब वही लिखते हैं, वही खराब इंग्लिश लिख रहे हैं, वही खराब एग्जाम्पल लिख रहे हैं. सो टू ऐड दैट यूनिकनेस और योर ओन एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे आई हैव दिस ईयर आई रोट अबाउट स्टीव जॉब्स और जेफरी इंटर्न और नेमार, ऑल दिस थिंग्स दैट not everybody will like, everybody will write. It's just based on my personal interest. Or you also understand how to create examples from thin air or different examples. So all this thing you will realize when you will write. So essay is very game changer. मतलब 140 भी आ जाते हैं, 100 भी आ जाते हैं लोगों के, और बाद में 1 मार्क का फर्क पड़ जाता है कि सर्विस क्या मिल रही है आपको, कार्डर क्या मिल रहा है. सो ऐसे लोग यू शुड पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इट. देन मेंस you will write answer ना, you will realize their answer writing is a skill. So that way, that's why you have to write. Why it is a skill? Because if you know the content ना, then you need to understand the presentation. कि यार मेरे को सवाल को मैक्सिमम पार्ट में ब्रेक करना है. इंट्रोडक्शन मेरे को 2 लाइन का लिखना है. इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, फिर करंट लिखना है, मुझे डेटा लिखना है, फैक्ट लिखना है. कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं रिपोर्ट क्रिएट कर दूंगा. नीति आयोग की रिपोर्ट ने ये बोला है कि भाई, जैसे वो सवाल आ गया कि भाई मेंटल हेल्थ या सुसाइड आर राइजिंग, वुमेन सुसाइड आर राइजिंग, तो आप डायरेक्ट वो कोट करोगे एज पर रिसेंट एनसीआरबी रिपोर्ट 4% ऑफ वुमेन सुसाइड आर. अब मुझे नहीं पता, बट कोई जेनरिक सा फालतू सा इंट्रो लिख रहा हो, उसके जगह पे ये लिख दो. अब वो है कि 4% ऐसा गेस नहीं करना चाहिए, बट धीरे धीरे विल रियलाइज कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. क्योंकि आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो भाई सामने वाला वो 100 कॉपियां पढ़ रहा है, समझ जाता है. बट थोड़ा बहुत यू हैव टू टेक डू दैट, बट दैट यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड आफ्टर यू डू इट. लाइक यू शुड नॉट लिसन टू एनीबडी, जस्ट यू विल राइट, यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि भाई आपकी पॉइंट्स अपने आप कम होते जा रही है, आप ज्यादा पॉइंट लिखते जा रहे हो, आप बराबर आपके जो ब्रीविटी जो है ना, ब्रीविटी सोल ऑफ विट जो बोला जाता है कि आप ऑटोमेटिक आपके पॉइंट कंप्रेस हो जाएंगे. आप कीवर्ड्स जो बोलते हैं लोग कि कीवर्ड्स की यूज करनी चाहिए, वो कीवर्ड्स ऑटोमेटिक यू विल रियलाइज कि कीवर्ड्स से मेरे पॉइंट छोटे हो जाते हैं. तो वो कीवर्ड्स आप यूज करने लग जाओगे. फिर आपको समझेगा कि यार जो सॉल्यूशन में जैसे होता है कि वो पहले
वो छोटा पॉइंट लिख देते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, फिर इलेबोरेट करते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। हम डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं, बट एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाता है वैसे चेक करना कि अगर आपने से वो पढ़ेगा भी नहीं आगे क्या लिखा है, वो पढ़ लेगा, अच्छा ठीक है पहला पॉइंट ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, ठीक है ये होगा सोशल इंक्लूड, तो बस पहला पॉइंट पढ़ेगा, टिक करेगा, एग्जाम्पल देगा, आगे बढ़ेगा। तो जितना हम एग्जामिनर के लिए अच्छा करेंगे तो दैट प्रेजेंटेशन फैक्टर इंक्रीजेस। बट ये सब स्टार्टिंग में नहीं होगा, अचानक से मैं आपको बोल दूंगा, आपको फिर माइंड में ही सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को वो पॉइंट को ऊपर लाना पड़ेगा ऐसा आगे करके। फिर आपको फ्रेमवर्क कौन सा लगाना है भाई, टेम्पोरल लगाना है, पेस्टल लगाना है, या स्टेक होल्डर लगाना है, कंपोनेंट लगाना है, जो सब ये मतलब एवरीबडी नोज दिस थिंग, ये कैसे लगाना है, इसको फिर टाइम प्रेशर में कैसे लगाना है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपको 7-8 मिनट के अंदर आपको सवाल आएगा, आपको लिखना है और सवाल की डिमांड हिट करनी है। बाकी सब जो वैल्यू एडिशन वगैरह होता है कि डायग्राम बना दो, ये कर दो, डेटा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, कोड डाल दो, ये सब बात की बात है। अगर आप डिमांड हिट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो रहा। तो डिमांड हिट करो, सवाल को सबसे पहले कंपोनेंट में ब्रेक करना है, फिर उसकी डिमांड हिट करनी है, फिर फ्रेमवर्क लगाना है, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करना है, फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, और फिर उसमें थोड़ा सा यूनिक डालना है ताकि मेरे को हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए। बट दिस लुक डाउंटिंग, बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो तो स्किल बन जाता है ये। सो आपको कोई रैंडम सवाल भी मिल गया तो ऐसा आंसर लिख दोगे आपकी सामने वाले को लगा रहे वाह क्या लिख दिया इसने, जबकि उसको और आपको सेम ही आता है, बस वो जबरदस्ती आईपीसीसी रिपोर्ट डाल रहा है, ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, अपना प्रीलिम्स का नॉलेज आप यूज करने लग जाते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का जबरदस्ती उसको बताओ भाई मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, आर्ट एंड कल्चर पढ़ के आया हूँ, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, मतलब ऑटोमेटिक होगा, लाइक दीज आर वेरी शॉर्ट थिंग, बट दिस विल ऑटोमेटिकली हैपन, like but you have to do it, मतलब the level has been significant, मतलब I used to say कि भाई there was pre Shruti Sharma era and post Shruti Sharma era. Shruti Sharma ma'am has raised the level of answer writing to a different level, like before that you if you see now the topper copies you will भाई क्या ही लिख दिया इसने यार, मतलब, और post Shruti Sharma era like she has just raised the level so high, and now afterwards Aditya Srivastavan they are just raising the level. Last year they were like decent, but before that they have very good answers. So that way you have to practice. So answer writing is a skill and you have to gain that skill. And just little bit about interview. Interview mein DAF is the one component. So before filling the DAF, contact your mentor, because you have to understand the game of the DAF. Like I had done an AI project in internship. Now I converted that to an achievement, despite the fact that I did not got any certificate. But I was like AI hype में चल रहा है. AI अगर AI DAF में रहा तो I will prepare, like I'm computer science engineer, तो I will prepare it और मेरा 10 मिनट इंटरव्यू में निकल जाएगा. सो फर्स्ट इंटरव्यू में तो निकल गए थे 10 मिनट, दूसरे में तो रैंडम हुआ था, बट दैट वे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, मतलब डैफ में ये नहीं लिख देना मतलब कोई भी हॉबी लिख दे रहे वगैरह, वेरी स्पेसिफिक, मूवी देख रहे, ये देख रहे, स्टैंड अप देख रहे वगैरह देख रहे, तो भाई वो फॉर्मल इंटरव्यू, बट लिखते लोग इसमें भी, बट फिर आपको आना चाहिए, मतलब द वे यू नीड टू जस्टिफाई इट, और थोड़ा सा वैसे टाइप। तो कॉन्टैक्ट अ मेंटर। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर का इन जनरल बोलूंगा कि जब तक फाउंडेशन कोर्स हुआ है ना, न्यूज़पेपर की उतनी यूटिलिटी आपको समझ नहीं आती चीज़ें, बट थोड़ा 10-15 मिनट देख लो। फाउंडेशन कोर्स जैसी हो गया आपको चीज़ समझ आने लग जाती है, 30 मिनट ज़्यादा न्यूज़पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो प्रीलिम्स के कोई रैंडम फैक्ट से सवाल आपको दिख जाएंगे, बट वो दिख जाएंगे वापस आपके इंट्यूटिव माइंड में रह जाएंगे, तो जब आपके पास एमसीक्यू एप्टीट्यूड आ जाएगा ओनली देन यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रैंडम आपने कोई पढ़ लिया कोई बर्ड का स्पीशीज वगैरह और एग्जैक्ट वो एग्जाम में आ गया, आपको याद भी आ गया, आपने टिक भी मार दिया, जस्ट बस आपके दिमाग में रहेगा, ऐसा फोटो कुछ देखा था कोई न्यूज़ में था कि ऐसे कोई चिंपांजी था, ये था वो था, तो वो बस उसके लिए है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि नोट्स बना रहे हो उसकी, ये कर रहे वो कर रहे, यू डोंट हैव टू डू फालतू की मजदूरी नहीं करनी जो बाकी कोचिंग वाले करके दे रहे आपको, ये करके दे रहे, यू हैव टू, इस एग्जाम में हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, बट हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह पे मजदूरी मत करो, अगर कोचिंग वाले नोट्स बना के दिए तो वो अच्छे से पढ़ लो, उसके अपने नोट्स बना लो अपने हाथ के, सो दैट वे। तो न्यूज़पेपर 30 मिनट्स पढ़ना है बस, उसकी यूटिलिटी प्रीलिम्स के लिए हो गया कि रैंडम सवाल हो जाते हैं। दूसरा है कि बाद में जब आप मैगजीन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या हुई थी चीज़ें वगैरह, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और तीसरा कि जो एस्से के जो बोल रहा था ना मैं, कि आपकी वोकैबुलरी, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो, आपका आर्टिकुलेशन, कैसे उन्होंने पैराग्राफ कैसे शिफ्ट किया है, वो जो एटलीस्ट जो मुझे पता नहीं थी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक सीखते जाते हो, वो वोकैबुलरी आपकी इंग्रेन हो जाती है, थोड़ा एडिटोरियल पढ़ लिए, थोड़ा सा ऊपर से देख लिया कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, सो दैट वे आपका मेन्स आंसर राइटिंग और थोड़े आपके कीवर्ड्स वगैरह नोट्स वैसे बनाते हैं लोग थोड़े बहुत, जैसे मेंस के वैल्यू एडिशन भी आप उठा सकते हो, कोई अच्छा कास्ट का मतलब एग्जांपल मिल गया, कोई मिल गया, बस वो नोट्स में बेनिफिट करेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई मेंस में नोट्स मतलब नोट्स बनानी चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर के एज पर मी उसका 30 मिनट ज़्यादा उसका रीडिंग भी नहीं होनी चाहिए, उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत लो है। और करंट अफेयर्स के लिए फिर कोई एक कोचिंग के मैक्सिमम उठा लो और उसको अच्छे से कर लो 1-2 बार बस, कोई ज़्यादा सोर्सेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, कि उसकी यूटिलिटी नहीं है। मेंस में बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, उसमें भी कोई एक कोचिंग की मैक्सिमम उठाओ, उसको पढ़ो और उसके नोट्स बना लो अपने तरफ से। प्रीलिम्स में भी एक, अदरवाइज उसकी यूटिलिटी है नहीं, तो दोज हु आर मेकिंग करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर नोट्स, आई वुड से कि कंसल्ट योर मेंटर, बिकॉज आई डोंट थिंक इट मेक्स दैट मच सेंस। और इंटरव्यू में करंट के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, उसमें न्यूज़पेपर ज़्यादा देर पढ़ना पड़ता है, उसमें 3-4 घंटे पढ़ना पड़ता है, 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और डिस्कशन ग्रुप से आपका थोड़ा आर्टिकुलेशन, like I was not that comfortable earlier in speaking in English, so because articulation is very important, whatever they say
like of course they will say कि ठीक है यार, he's from this background, so his English may not be that good, but if you have good articulation, you have concise articulation, if you are able to structure things, you have good point, then they will always appreciate you. Like lawyers always get good marks. A lot of people say me that lawyers from top college. So that way, discussion group to improve your articulation and all. And then interview also, there are few hacks like you have to hook. So like whatever you will answer, you need to answer in a such a way that the next question comes. Like my hobby was Vipassana meditation. So if they ask you that what is Vipassana, so you can say, sir, Vipassana is a meditation where we just observe our body sensation and try to stay equanimous. And you can stop there. But you should not do that. Like बोलते जाओ फिर कि sir, I have also been to 10-day courses, 4 10-day courses. I also went to me. You understand कि सामने वाला सुनने को ready है या नहीं है. But it is a test. Interview is not about knowledge. It's about to reflect your values, your personality. So the more you will speak, the more they will be able to judge you. And like अगर वो बोल देंगे ना रुक जाओ, they will tell you भाई बस अब मत बोल. तो that way you will know. But most of the time they are listening. At least in the real interview, they will allow you to speak. They will allow you to speak, but you should be conscious कि आप क्या बोल रहे हो. So that's why discussion group important होते हैं. But like थोड़े personalized answer दो, personalized example दो. But these are very interview specific things that one would know. And apart from it, last thing I have taken too much of your time, but last thing I would say कि मतलब ये प्रिपरेशन वो सब तो हो गया, बट उसके अलावा फिर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट या बाकी जो चीज़ें होती. सो यार मतलब कोटा में था तो मेरा डिफरेंट था. मतलब आई वॉज लाइक कि भाई कोई सोचो मेरा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इस एग्जाम में क्लियर करने के ऑड्स आपके काफ़ी कम है, तो फालतू के ऑड्स क्यों कम करने. तो नो सोशल मीडिया, नथिंग. आपके पास 2-3 अगर सीरियस दोस्त है वो भी यूपीएससी के हो, या फिर कोई पुराना इफ ए गुड फ्रेंड हु अंडरस्टैंड, उनसे थोड़ी बहुत बात कर ली बीच में खाते टाइम या उसके टाइम या थोड़ा डिस्कशन वगैरह कर लिया, दैट इज़ फाइन. आप यू शुड बी इन द जोन 24/7. लाइक ये दिख रहा है ये क्या हो रहा है. और जैसे ईरान में कोई बम या ईरान का वो मर गया, तो ये आपको न्यूज़पेपर से पता चलना चाहिए. आपको ये नहीं कि या फिर आपके दोस्त ने आपको बता दिया, ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे पता चल रहा है, इधर पता चल रहा है, उधर पता चल रहा है, या लाइव न्यूज़ क्या हो रहा है. भाई आई डोंट केयर कि किसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया. मेरा काम नहीं है, मेरा काम एग्जाम निकालना है. तो यू शुड ऑलवेज हैव दैट एग्जाम सेंट्रिक माइंडसेट कि यहाँ पे मैं ज्ञान देने नहीं आया, इसको समझा रहा हूँ, इससे डिबेट कर रहा हूँ. भाई आई डोंट केयर. मेरे को है कि मेरे को एग्जाम निकालनी, रिजल्ट निकालना और भागना है यहाँ से. तो दैट वे यू शुड हैव दैट, ट्राई टू स्टे इन दैट जोन. स्पेशली जब प्रीलिम्स पास में आ रहा है, सोचते रहो यार लक्ष्मीकांत का टाइटल देख के. टाइटल वो भी एक तरीका होता है कि टाइटल दे लिया लक्ष्मीकांत का, अब उससे उसमें सोच रहे हैं इस पॉइंट के बारे में मुझे क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या, rather than passive reading, active revision sort of. So these things you have to do, complete stay in the zone. क्या मैंने आर्टिकल 293 बोला तो क्या था, फिर उसके पीछे क्या था, उसके ये क्या था, वो क्या था, उससे PYQ. तो that way try to always think about this exam. मतलब it is challenging, but if you do it now, you start to enjoy it. At least in first attempt you will enjoy it thoroughly. So do that, and the consistency is important. Like it doesn't matter if it is Sunday or Monday. Like you for UPSC aspirant, every day is a Sunday, and he has to study on Sunday also. So that way every day 8 to 10 hours you have to study, not ये 11-12 वगैरह ये सब नहीं करना है. And try to stay in the zone. Like 8-10 मतलब I am just saying whatever you it is, you should be in the zone. Like अपना whatever you are doing कि भाई I will try कि UPSC सेंट्रिक काम चल रहा है मेरा, कि 1-2 साल में अपनी डिसेंट एफर्ट डालूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा. दैट शुड बी योर माइंडसेट कि 1-2 साल तो मैं अपना पूरा 100% देता हूँ, ताकि बिकॉज इन द जर्नी यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट वे if you don't put in the effort na, then it would be a waste of time. So because also this exam is a zero sum game. So like either you will win or you will lose. And also the skills that you will gain here, like talking or all these things, these are not marketable skills, at least for lower entry level jobs. Maybe in higher management level you will find those understanding of interconnection of things and articulation and this thing helpful, but not entry level. So that way the investment that you're doing, if you do it somewhere else, the amount of effort you are putting, you will get far more reward. But still you have decided that you want to you 100% decided you want to go for UPSC, then give 100% there, so that you will gain maximum out of it and your odds will improve. And apart from it, you should have some hobbies. Like it helps. Like I used to play football after college. I used to not, but I used to have a ball in my room. So I'm playing with the wall or whatever, doing it, or like maybe dancing, vipassana, yoga. These hobbies, they help you stay calm and like that are important. So whatever hobbies you have, you should pursue it, like, but to the certain limit. Like they should not act as hindrance and all. And yes, last time I would say that the reward for the work is not what you get, it is what you become. So always focus on journey and all nishkam karma, that you should have to do your duty 100% and let the result and all go the way they will go. So this will also help you in prelims day or exam day कि क्या होगा क्या नहीं होगा. भाई तुम अपना काम करके आओ बस, rest whatever will happen afterwards, we will decide. So that way I will end my speech and whatever it was, and I will allow anybody, they can ask question. I will open the floor.
अगर इफ़ यू फील ओवरलैप हो रहा है तो इग्नोर करो, करंट बस थोड़ा सा ग्लैंस कर लेना यार। जैसे कोई आसान सवाल आ गया, जैसे लास्ट टाइम ऐसे थे कि भाई ये EU ग्रीन डील वगैरह, ग्रीन डील कहाँ पे साइन हुई वगैरह, तो ये अगर जो करंट अफेयर थोड़ा अवेयर था, जिसने मैगजीन देखी थी, तो उसमें ये तुरंत था। तो ऐसे सवाल आपके हो जाते हैं फिर। तो इसी के लिए आप बस मैगजीन देखते हो, एक दो बार एक ही देखते हो आप और ग्लैंस करते हो। और करंट में आप रियलाइज करोगे कि करंट में स्टैटिक ही है, तो यूपीएससी करंट से उठा रहा है और उसको स्टैटिक से कनेक्ट कर रहा है और सवाल बना रहा है। तो करंट और स्टैटिक कोई डिफरेंस नहीं है। करंट और स्टैटिक में डिफरेंस आता है कोई ऐसे रैंडम सवाल कि भाई ये यूएनईपी ने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया या ये बर्ड हो गया, तो वो उसके लिए करंट अफेयर्स देखना होता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ 5-6 सवाल आएंगे बस करंट अफेयर्स के। तो आपको देखना, अगर आपका फाउंडेशन ही कमजोर है तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। बट एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना, इट विल हेल्प यू 5-6 सवालों के लिए। क्योंकि वो सवाल मतलब जैसे ही है कि यार अगर सब लोग मान लो कोई मैगजीन कर रहे हैं, अगर आपने भी वही करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई उससे सवाल आ रहे, इसलिए कि भाई अगर वो सवाल मेरे कंपटीशन में आ गए, वो सही कर रहे तो मुझे भी वो सही करना, दैट वे। Sir, like in ancient history, there is a less weightage in the exam. So, sir, instead of focusing more on that, we should focus on the relevant topics like the polity, science, and like this. So, sir, is it the right way to do that? Like focusing more on that? यार द थिंग इज ना कि यूपीएससी कभी भी पैटर्न चेंज कर देता है। लाइक लास्ट टाइम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सवाल आ गए, एंशियंट के भी बहुत सवाल आ गए और बहुत आसान सवाल थे। सो द थिंग इज ना, आसान सवाल कोई भी सब्जेक्ट का आपको गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए नेवर लीव एनी सब्जेक्ट बिहाइंड। कोई भी सवाल का आसान सवाल है एंशियंट हिस्ट्री में, यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट। बट अगर आपको ये भी नहीं पता है कि भाई पुलकेशिन II को किसने हराया था, या हुनसिन सांग जो भी था वो कौन से किंग के टाइम पे आया था, जो बेसिक सवाल है हर बंदे को पता होना चाहिए कि भाई नवरत्न कौन थे, या तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट वे कि भाई एटलीस्ट मैं ये कवर कर लूँ, और अगर फिर मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ, या PYQ में पूछा। सो बेसिक तो आपका मैपिंग में भी अगर आसान सवाल आ गया और आपसे नहीं हो रहा, भाई गंगा की ट्रिब्यूटरीज पूछ दिया, ब्रह्मपुत्र की पूछ दिया, और आपको ये इसमें डाउट हो रहा है, या गोदावरी की भी पूछ दी, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई माउंटेन रेंज फेमस एनसीईआरटी में कोई चीज दी हुई है कुछ ज्योग्राफी वगैरह में 11th की, और वो आपको नहीं हो रहा, वैसे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फिर यू हैव टू डिसाइड कि भाई मेरे पास टाइम कम है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी लो, उसकी करंट अफेयर्स में तो और ज्यादा लो है। यू हैव टू डिसाइड कि भाई जरूरी है क्या, एक बार देख लिया मेरे को लग रहा है रेलेवेंट नहीं, और वो भी देखना है कि कितना आपको याद आ सकता है। अभी के लिए मत देखो मैं 3-4 महीने बाद मेरे को याद रहेगा क्या, तो दैट वे कि भाई इससे कॉस्ट बेनिफिट कितना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इट इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। बट बेसिक सवाल किसका गलत नहीं होना। And sir, like a answer type. Sir, there we should use the diagrams like the world map in the geography exam, or should we use the like this one diagrams? भाई मैप बना दो जितने, GS1 में तो बोलते हैं मिनी डायग्राम जितने ज़्यादा बना सकते हो उतने ज़्यादा बना दो, एक सवाल में 3-4 डायग्राम। और मैप भी तुरंत साइड में आपका होना चाहिए, छोटा सा तुरंत बना, 3 सेकंड में बन जाना चाहिए आपका इंडिया का मैप। खराब बने कैसा ही बने, वर्ल्ड मैप को 3-4-5 सेकंड लगते, बट वो बन जाए तो अच्छा ही रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, जल्दी बन जाना चाहिए। खराब बनाओ कैसे ही बनाओ, बट डिमांड के हिसाब से। मतलब आपको पूछ दिया कि भाई वाई अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग इन टायर 1 सिटीज, और उसमें आप मुंबई पुणे बना रहे हो, उसका क्या यूटिलिटी। तो वो मत करो, बट मैप जितने ज़्यादा बना सकते हो बनाना होता है, तुरंत बनाना होता है। जैसे कभी कभी ये बोलते हैं, ऐसे पूछ दिया कि भाई वाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपन इन ब्रिटेन या ऐसे कुछ। अब इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लोग क्या इंट्रोडक्शन लिख दिया कि भाई ये साल में हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फीचर लिख देंगे, तो पूछा नहीं सवाल के अंदर। बट आप लिख रहे हो, आपने चंद्र बनाया और लिख दिया 3-4 पॉइंट लिख के कि भाई ये जिसने ये इन्वेंशन स्टीम इंजन किया था, ये किया था, वो किया था, इसलिए इनक्लोजर ये था, वो था, 3-4 जो आपने कीवर्ड जो सबको पता होता है, अभी पूछा नहीं डिमांड में। तो ये चीज़ आप लिख रहे हो, आपको है कि भाई मैं ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक करता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ, तो इसमें फिर आपके 5 सेकंड से ज़्यादा जाने नहीं चाहिए, मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, क्योंकि डिमांड नहीं है। या आप अपने तरफ से कर रहे हो, वे ऐड जो भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, ये डिमांड नहीं है, तो उसको फिर आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। और जो डिमांड है उसको ज़्यादा टाइम दो। फिर न्यूज़पेपर के नोट्स तो बनाना ही नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली, मतलब आई वुड से, मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं मे बी, बट इट विड जस्ट कंसल्ट योर मेंटर, बिकॉज हाँ भाई बोलो ना, आप क्यों मेहनत कर रहे हो यार, अगर कोचिंग वाले कर रहे हो तो मतलब यू डोंट हैव टू पुट इन एफर्ट्स, मतलब बहुत और जगह है उसमें एफर्ट डालो, और मेंस के आंसर लिख लो टाइम पे। न्यूज़पेपर के नोट्स तो बस, न्यूज़पेपर नोट्स में मेंस का वैल्यूएशन बहुत निकलता है, सिक्योरिटी में वो प्रहार आ गया, ये आ गया, वो वैसे कोचिंग में मिल जाता है मैगजीन में, बट अगर आप वो थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लो, यूनिक यूनिक एग्जांपल्स, एथिक्स में कोई हो गया, तो दैट हेल्प्स बस। यार मेंस में तो मस्ट होता है नोट्स बनाना, लाइक एब्सोल्यूट मस्ट, क्योंकि मेंस में जब आपके 3 घंटे है ना, तो वही निकलेगा जो आपके ब्लड में है, और आपके ब्लड में वही रहेगा जो आपने 5-6-10 बार पढ़ा है, और वही वही पढ़ा होगा आपने जो आपके नोट्स खुद से हाथ से लिखा हुआ है। कोई इधर कोई क्लास में कोई सर ने कोई रैंडम एग्जाम्पल दे दिया या इधर पढ़ लिया, इट्स वेरी रेयर कि आप मेंस के एग्जाम में लिख पाओगे इतने प्रेशर के अंदर, इतने वो। तो मेंस के लिए तो एब्सोल्यूट मस्ट होता है। प्रीलिम्स के लिए अब ये है यार कि अब लक्ष्मीकांत की आप नोट्स बना रहे हो समरी में, तो फिर क्या मतलब है उसका। तो और अगर आपके फाउंडेशन के नोट्स है तो क्यों बना रहे हो, तो कोई उसमें मजदूरी मत करो, मतलब अगर किसी और ने करके रखी तो क्या ही करना है। बट अब जैसे आपके 10 दिन बचे हैं, आपने देख लिया, मैंने अब लक्ष्मीकांत की कुछ कुछ चीज़ें मेरे को कंफ्यूज होती है बार 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 बार,
कि भाई ये उसको लिख लो बस 4-5 पेज पे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका शॉर्ट नोट बन जाएंगे। ताकि जैसे मेरा था कि मैं एग्जाम के पहले पढ़ता था, मतलब पेजेस ऐसे पेजेस लेके जा रहा हूँ मैं और 3-4 पढ़ रहा हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि मेरे को कुछ याद हो गया, कुछ ये हो गया वो हो गया, जस्ट कि भाई मैं जोन में हूँ, मैं फालतू डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इधर क्या हो रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरा है कि भाई पढ़ाई में रहूंगा मैं, और मैं ये भी टेंशन नहीं था कि मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज़। और दूसरा हाँ, ये भी अच्छा मुझे एक रहा था कि प्रीलिम्स में जाने से पहले लापी वाई क्योंकि जो बुकलेट है ना वो लेके जाना और सवाल सॉल्व करने शुरू कर देना, 3-4 वही सवाल वापस से, जैसे अज्यूम करना कि रैंडम सवाल आया और सॉल्व करना, सोचना कि यार इसमें क्या सोचूंगा मैं, अच्छा ये टिक मार, सो दैट आप एग्जाम में जाने से पहले आपका शुरू हो गया पेपर, तो आप एग्जाम में वेट नहीं करते, स्टार्टिंग जो आपकी स्लो होती है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब आई विल ट्राई टू ब्लॉग बना के ट्राई टू की सब लिख दूं, बट ये सब चीजें मैटर करती है, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग, मेंस के पेपर में जाने से पहले लिख लो आंसर 2-3, थोड़ा सा हाथ जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करो, वैसी चीजें, दैट थिंग, मतलब यार अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है ना, मतलब पॉलिटी का, कि मेरे को पता है ऊपर ऊपर से, तो मेरे को सब पता है कैसे चीजें चल रही है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको अगर फाउंडेशन क्लियर है ना, तो आप छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे, बट आपको प्रियम्बल में इसका मतलब क्या, रिपब्लिक का मतलब क्या है, या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, मतलब प्रियम्बल के आपके 4-5 आपने पढ़ लिया एक बार का, आपको समझ आ गया सब, तो बहुत रेयर होगा कि आपको 1-2 चीजें में कंफ्यूजन होगा वगैरह होगा। आर्टिकल में फेडरलिज्म वगैरह में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई स्पीकर का ये है क्या, स्पीकर कास्टिंग वोट कब डालेगा, रिजाइन वगैरह, बट आपको एक ब्रॉड पिक्चर पता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वो, तो अगर आपको पूरा ही आपका वो हो जा रहा है, तो देन यू शुड फोकस मोर ऑन फाउंडेशन, फाउंडेशन अच्छा करूं मैं, क्योंकि एक बार फाउंडेशन अच्छा हो गया, फिर उसके बाद आपको, आप छोटी चीजें भूलोगे, आप पूरा ढांचा थोड़ी भूल सकते हो, मतलब द पर्पज ऑफ वॉचिंग वीडियोस लेक्चर्स इज कि जो आप खुद से बुक से पढ़ सकते हो, बट टीचर सब पढ़ा होता है, टीचर ने 5-10 साल वो पढ़ा रहा है वगैरह कर रहा है, तो उसको पूरा ढांचा पता है, तो वो आपको समझा दे रहा है, तो वो आपकी लाइफ आसान कर दे रहा है, बट घर जाके आपको 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, लाइक इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक ज्योग्राफी की जो 11th की एनसीईआरटी, बट वो तब आपको मजा आता है जब आपने सब पढ़ रखा हो, अगर कोई नॉर्मल बंदा पढ़ेगा उसको कुछ नहीं समझ आएगा, लाइक इन दैट मैनर इट इज द वर्स्ट रिटन बुक कोई बिगिनर के लिए, बट इसने सब पढ़ लिया, उसकी एक एक लाइन में इतना डेप्थ है, पर वो डेप्थ आपको समझने के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एक बार आपको समझ आ गया ना, तो वो आपका फिर वो भी आप जो बोल रहे हो ना, फिर आपको थोड़ा इंट्यूशन आ जाता है कि यार ये इसका ये होगा, इसका वो होगा, तो फाउंडेशन पे फोकस करो, फिर ये नहीं होगा, फाउंडेशन पे फोकस किया तो आप अगर 1 महीने बाद भी वापस पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, तो आपको छोटी छोटी चीजें भूलोगे आप, पूरा नहीं कि भाई पूरा ही उड़ा गया, मतलब ऐसे नहीं होगा, तो बहुत तेजी से हो जाएगा, तो दैट वे फोकस ऑन फाउंडेशन, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपको कोई एक्सप्लेन करने बोल रही तो आप एटलीस्ट एक्सप्लेन कर दो उसको। यार इंटरव्यू मैंने 2 दिए थे, मतलब लास्ट ईयर मेरे को रेलवेज मिला था, तो इंटरव्यू लाइक लास्ट ईयर में अच्छे मार्क्स थे मेरे, इस बार आई डोंट, अच्छे ही होंगे मोस्ट लाइकली। इंटरव्यू में जब आपको गेम समझ जाता है ना, इस एग्जाम में हर स्टेज का गेम है, आप देखोगे इसे, इस बार भी लिस्ट में 250 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो आगे नहीं होगा, विच इज गुड फॉर यू कि, विच इज गुड फॉर यू कि आगे नहीं होगा, मतलब कि लोग अब उनके लिए कम कर दिया, तो इट इज अ पॉजिटिव रिफॉर्म, बट तो वैसे क्योंकि उनको गेम समझ गया है, उनको आंसर का, जैसे मैंने फॉरेस्ट का मेंस ऐसे हाफ हार्टेड दे दिया था, बट मेरा हो गया, वाई, बिकॉज मेरे को गेम समझ गया है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सो इंटरव्यू का भी गेम होता है एक। अब वो गेम मतलब जो मैं आपको समझाया था ना, डैफ पर्सनलाइज वगैरह हुक करना, और दूसरा कि जो नहीं आता है वो तुरंत बोल दो नहीं आता है, मतलब यहाँ पे खड़े होकर किसी ने मेरे को पूछ दिया कोई आर्टिकल वगैरह, मुझे नहीं आता ना, मैं बोल दूंगा नहीं आता है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट नॉलेज टेस्ट, अगर आप भाई मेंस क्लियर करके पूछो ना, तो अपन कोई बहुत बेसिक सवाल पूछ दिया कि भाई पंचायत सिस्टम में कितने लेवल होते हैं, मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं आता, तो दैट फिर वो हो जाता है, वो खराब हो जाता है, बट ओवरऑल अगर कोई रैंडम सा सवाल पूछ दिया कि भाई कितने लाख पे 2 लेवल होते हैं, कितने लाख पे 3 लेवल होते हैं, अब वो आपको फिर वो लक्ष्मीकांत पे डिवाइस करना पड़ेगा कि 20 लाख था, 10 लाख था वगैरह, बट अगर आप वहाँ पे बोल दो कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ, वैसे पूछते नहीं वैसे सवाल हो, बट इन जनरल, तो यू शुड बी क्लियर कि भाई जो चीज़ नहीं पता है मुझे ऑनेस्टली, जो आपने करा है नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर, ये नहीं सोचना कि हाउ स्टूपिड आई विल लुक, या मेरी हॉबी का पहला ही सवाल पूछ दिया मुझे वही नहीं आता, तो गेस बिल्कुल जीरो, मतलब लोग एक तो गेस करने से पहले, जैसे मेरे को पूछ दिया था अचानक से, मतलब पूरा सेकंड इंटर, पहला इंटर मेरा पूरा डैफ बेस्ड था, एआई लिख दिया, तो एआई पे 10-15 मिनट डिस्कशन हुआ था पूरा, और मैं प्रिपेयर कर गया था, मैं मचा दिया था, मतलब प्रॉपर, आप ऐसे प्रॉपर एग्जांपल वगैरह सब प्रिपेयर करके जाओ, कीवर्ड्स वगैरह, आप पूरा यू विल, आप इंटरव्यू चलाते हो, बट इस बार पूरा रैंडम हो गया, क्योंकि उनको पता था भाई ये तो डैफ तो रट के आया होगा वगैरह, तो फिर वो रैंडम पूरा पूछा कि, तो उसमें फिर मतलब जैसे मेरे को पहला ही सवाल मतलब पहले कोटा वगैरह का मैंने पूछा, फिर वो लोकसभा के एमपीज कितने, अब ये सवाल में ये नहीं बोल सकता आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट मेरे को श्योर याद नहीं आ रहा था, मतलब मेरे को था, तो मैं बोला मैम आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर बट इट्स अराउंड 550, अब मेरे को 550 क्यों याद है, क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत तब पढ़ी होगी कभी, मेरे दिमाग में बैठ गया था कि भाई 550 मैक्सिमम लिमिट है 543 है, बट एटलीस्ट द फैक्ट कि मैं बोल दिया पहले ही मैम कि आई एम नॉट एक्जैक्टली अवेयर ऑफ, इट्स अराउंड 550, पता उसकी वजह से कम भी दे दी होगी पता नहीं, बट एटलीस्ट वो था कि आपने पहले बता दिया, ये सवाल में आप ये नहीं डायरेक्ट बोल सकते कि मैम आई डोंट नो, बट अगर मुझे नहीं पता था आई शुड हैव सेड आई डोंट नो, और नहीं पता तो बोल दो मैम आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर बट दिस इज दैट वे,
तो द क्लियर थिंग इंटरव्यू में ब्लंडर नहीं करना, इसको बोलते हैं ब्लंडर नहीं करना। और आप कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज बोल दे रहे हो या फिर कोई भी मतलब द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, इट शुड बी लाइक एन ऑफिसर और डिप्लोमेट द वे दे आंसर थिंग्स। और कोई ब्लंडर नहीं करना है, अपना डैप प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से। अगर हॉबीज पे आपको पहला ही सवाल नहीं आ रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द थिंग इज अ फॉल्ट इन यू भाई। आप अगर क्योंकि आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, डैफ के तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, करंट के प्रेडिक्ट कर लेते हो, पर वो यूपीएससी वाले फिर पुराना पूछ देते हैं। बट डैफ तो दैट वे इंटरव्यू इज दैट वे। और इंटरव्यू में जब आपका आर्टिकुलेशन और कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, थिंग इज अगर आपने मेंस अच्छे से करा है, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो फिर दैट कॉन्फिडेंस से आपको लगता है ठीक है भाई, नहीं पता तो नहीं पता यार, पढ़ लेंगे। तो दैट वे दैट कॉन्फिडेंस गिव्स यू एंड यू फिर आर्टिकुलेशन इज गुड, फिर आपका वो हो जाता है कि ठीक है आई विल डू वेल। फिर आपको इंटरव्यू मॉक वगैरह देके भी यू इम्प्रूव दैट। यार इकोनॉमी में भी देखो फाउंडेशन होता है, रेपो रेट हो गया, एक बार पढ़ लिया, बैंकिंग कितने शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक हो गया, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। करंट वैसे बहुत कम होता है इकोनॉमी के अंदर, और जितना भी होता है वो करंट मैगजीन से पढ़ लो। ये भी चीज है अगर, हाँ वो आते हैं, मतलब कि वो पूछ देंगे केसीसी क्रेडिट कार्ड किस किस के लिए एप्लीकेबल है। अब वो मेजोरिटी केस में किसको पता नहीं है, तो सब गैस ही लेने वाले हैं, तो वो आपको लॉजिकल गैस लेना है। बट इकोनॉमी में भी भाई हर चीज में अगर आप फाउंडेशन अच्छा कर लो तो आपका करंट अफेयर्स बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहां पर जाके आप वापस नहीं पढ़ रहे चीजें, आपको ऑलरेडी सब चीजें पता है, और आप करंट की मैगजीन बस देख रहे हो कि भाई कुछ नया आ गया क्या। तो इकोनॉमी में मेजोरिटी थिंग्स होती है, बहुत कम कुछ नया आता है, आपको बस वो देखना है। तो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स नहीं होता। साइंस एंड टेक इज अ डिफरेंट गेम। साइंस एंड टेक में बेसिक थोड़ा सा ही होता है, और उसमें रैंडम सवाल बहुत आते हैं। हिंदू वाला उस मतलब देख लो, आपके पास टाइम है तो एक बार ग्लांस कर लो, बट पता नहीं मुझे, मतलब आते थे पहले वो स्ट्रिंग बी वगैरह रैंडम सवाल। नहीं, एक बार बस ग्लांस कर लो, ऐसे स्पेसिफिक वगैरह वो मत करो। अगर घर पे आता है हिंदू संडे को देख लिया बस, उसके नोट्स जीवन बनाओ, बस एक बार देख लो कोई फोटो वोटो ऊपर ऊपर से, दैट इज नॉट बेनिफिट। कोई साइंस एंड टेक की फाउंडेशन, साइंस एंड टेक में आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन कैसे बन रहा है, बेसिक सा वैक्सीन के बारे में, स्पेस के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स है, वो लोअर लेवल ऑर्बिट, मिडिल लेवल ऑर्बिट, ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कुछ नया आ गया कि भाई निसार सैटेलाइट लॉन्च कर दिया इसरो ने, ये कर दिया, तो उसके स्पेसिफिक डिटेल्स वगैरह। तो साइंस एंड टेक में थोड़ा ज्यादा करंट होता है, इकोनॉमी में नहीं होता ज्यादा करंट, आई वुड एटलीस्ट से दैट। उसमें जो नया होता है वो कर लो, साइंस एंड टेक में होता है तो वो देख लो। और साइंस एंड टेक थोड़ा रैंडम भी होता है, तो उसके बाद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कीवर्ड को ब्रेक करो। वो बोल रहा है मोल्टन न्यूक्लियर रिएक्टर या फ्यूजन रिएक्टर या फ्यूजन रिएक्टर, तो आपको फ्यूजन फ्यूजन पता होना चाहिए, फिर आप उससे गेस करो कि भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिएक्टर बोल रहा है, उसका क्या मतलब हो सकता है, आइसोटोप क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है वो। तो दैट वे आपको अगर फ्यूजन फ्यूजन का आइडिया है तो आपको उससे तुरंत कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों को। इसलिए यहाँ पे यूपीएससी वांट्स यू टू थिंक एंड अप्लाई अंडरस्टैंडिंग दैट वे। जीएस के लिए और सीसेट दोनों के लिए, सीसेट के लिए ठीक है। यस, सीसेट का ऐसे है कि मतलब फॉर मी इट वाज नॉट एन इशू, बट स्टिल मैंने सीसेट में मेरे नोट्स थे प्रॉपर, हर सीसेट के पहले मैं पढ़ के जाता हूँ उनको। मेरे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी कि मैं कैसे करूंगा, कि भाई मैं मेरा था कि मैं कोई ईगो गेम नहीं खेलूंगा। अगर 30 सेकंड में मेरे को समझ रहा है कि इसका आंसर आधे एक दो मिनट में नहीं आने वाला है, तो फिर वो मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का सवाल क्यों ना हो, या क्लॉक का सवाल क्यों ना, मैं छोड़ दूंगा उसको, बोलूंगा सेकंड राउंड में करेंगे। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में था कि भाई असम्पशन वाले सवाल में से नहीं होते, समरी वाले हो जाते, वो हो जाते, तो मैं वो कर लूंगा। तो मेरा था कि भाई ट्राई करूँ कि वन आवर 1 जितने आवर में कितने में मैक्सिमम कर सकता हूँ, और बाकी सवाल कोई सवाल में अटकना नहीं, कोई ईगो गेम नहीं खेलना है कि भाई मैं से कैसे नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। आप जितने सारे सवाल बाकी गोला मार दो, और फिर जितने हो गए आपको उसको अटेम्प्ट कर लो, और फिर उसके हिसाब से बाद में फिर ट्राई करो कि भाई ये सवाल हो सकता है, उसमें करो, ये करो, वो करो। सो प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, ये सीसैट के लिए क्या। और दूसरा कि सीसैट के लिए एक बार फाउंडेशन कर लो यार, एक बार बेसिक। सीसैट में वो ट्रिक्स वगैरह पे मत जाओ कि ये लिस्ट लेके जा रहा हूँ मैं, क्लॉक का समझ लो भाई कि कैसे होता है रोटेशन, एक आवर हैंड कितना, 1 मिनट में कितना घूमता है, बहुत भाई नॉर्मल वो होता है बेसिक। बट एक बार आप वो कर लो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर थोड़े फॉर्मुलेस कर लिए। तो सीसैट में थोड़ा एफर्ट डाल लो, 3-4 महीने, मतलब अभी अगर टाइम है मान लो अगले साल का दे रहे हो, इस साल का दे रहे हो, उस हिसाब से देख लो कि यार पीवाईक्यू, उसमें पीवाईक्यू भी रिपीट होता है। लाइक मैं सीसैट में हर टाइप के पीवाईक्यू करके गया था, मेरे पास नोट्स भी थी, जबकि मेरे को सीसैट में मैं कैट भी दे रखा हूँ मैंने। तो स्टिल मैं था कि कैजुअल कुछ लेना नहीं है, मतलब हिंदी लैंग्वेज का पेपर भी कैजुअल लेना नहीं है कि भाई वो भी पढ़ के जाऊंगा मैं, हिंदी के फिर मुहावरे देख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो दैट वाज सेम सीसैट के साथ मेरा था कि भाई तब भी मैं पीवाईक्यू फिर पढ़ रहा हूँ वहाँ पे, क्लॉक का, कैलेंडर का, ये क्या वो क्या। मेरे नोट्स से सारे पीवाईक्यू मैंने देख लिए है कि इंग्लिश में कौन से टाइप के पीवाईक्यू आते हैं, मैथ्स में कौन से टाइप के पीवाईक्यू आते हैं, और वो मैं करके गया हूँ। मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं अब कर लूंगा, और कोई ईगो गेम नहीं लेना है, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करना है। बट सीसैट को अगर आपका यू हैव सम वीकनेस, फाउंडेशन वीकनेस है, आपने मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, कोई और बैकग्राउंड से हो, तो फिर वो जैसे जीएस करते हैं, पॉलिटी 2-3 महीने पढ़ना ही पड़ता है हमको, वैसे ही 2-3 महीने सीसैट को पढ़ लो और उसको सॉर्ट करो एक बार का। आप उसको अगर शॉर्ट
टर्म तरीके से छोड़ने की कोशिश करोगे, यार ये सवाल कैसे होता है, ये ट्रिक देख लिया यूट्यूब पे, वीडियो देख लिया, वो नहीं होगा। उसका भी रूट कॉज आइडेंटिफाई करो। रूट कॉज क्या है भाई, मेरे फाउंडेशन गैप से थोड़े से क्वांटिटेटिव गैप है, ये है वो है। उसको अच्छे से, जैसे लक्ष्मी का पॉलिटी पढ़ाते हैं वैसे कोई टीचर जो 2-3 महीने में पढ़ा रहा है अच्छे से, उससे पढ़ लो। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप ही को मेहनत करनी है, आप ही को रिवाइज करना है, फिर बार बार लेक्चर देख के कोई फायदा नहीं। और पीवाई की उसमें बार बार कर लो, पीवाई की रिपीट होता है। आई वुड से कि यार मतलब एक बुक फॉलो होनी चाहिए, लेस इज मोर, और मोस्ट ऑफ द थिंग लिसन टू योर फैकल्टीज वट एवर दे से, रादर देन कि किसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इसने वो बोल दिया। फिर ऑप्शनल तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए अगर आपका फाइनल है तो, मतलब ये इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि आपके लेक्चर बहुत कम होने चाहिए। फाउंडेशन के लेक्चर हो गए, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होना चाहिए, और ऑप्शनल के लेक्चर उसके साथ देख लो। और लेक्चर में भी ये होना चाहिए ना कि मतलब अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, ऑफलाइन डिफरेंट गेम, कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर कभी भी दिन के स्टार्टिंग में मत देखो, रात में या दोपहर में खाने के बाद जब नींद आ रही तब देख लो। सुबह सुबह काम कर लो, लिख लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो दिस यू हैव टू प्लान बाय योरसेल्फ, और फिर उस हिसाब से लेक्चर, बहुत ज़्यादा लेक्चर ही देखने, लेक्चर देख लिया फिर उसको रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, ये कर लिया, फिर थोड़ा ऑप्शनल का लेक्चर देख लिया, वैसे टाइप करना है कि यू हैव टू मैनेज। बट बोला ना, एक बार लेक्चर देखो बस, और बहुत रेयर कि कोई कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रही, उसी का लेक्चर वापस देखना। यार हाँ, यस, यू वांट टू कंटिन्यू। हाँ ठीक है, तो ये क्लासेस में ये यू हैव टू बी सिलेक्टिव। अगर मेरे को पता है कि भाई मेरे को नहीं, यू कैन सिट, मेरे को पता है कि भाई मेरे को पॉलिटी में कोई नीड नहीं है, मतलब क्लासेस करने की, रिवीजन करने की, या मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ बाद में 2x पे 3x पे। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यार एक बार आपने फाउंडेशन कर लिया है और आपको चीज़ समझ आ गई है, आपको लग रहा है भाई मैं खुद से पढ़ लूंगा पॉलिटी, या मैं बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा 2x 3x पे, तो वो देखो। यू शुड बी वेरी स्ट्रेटेजिक। क्या मेरे को लग रहा है भाई ये टेस्ट सीरीज अब वैसे ली थी मैंने, बट अब मेरे पास टाइम नहीं है उसके, आप पीवाईक्यू कर लेता हूँ मैं, अब 2-3 महीने बचे, अब मैं क्या नई टेस्ट सीरीज उठा रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं पीवाईक्यू कर लेता हूँ। तो दैट वे यू हैव टू, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू डू वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम, वट एवर इज रिक्वायर्ड आई हैव टेल देम एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। भाई जरूरत नहीं लग रही भाई टेस्ट सीरीज फालतू सवाल पूछ रहे हैं, एक दो पीवाईक्यू बस कर लेना अच्छे से, और फाउंडेशन कर लेना, बेसिक्स अपने जो है। ऐसे यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, यू डोंट हैव टू गो टू, अरे वीडियो 2x 3x पे देख लो यार वीडियो वगैरह अपने हिसाब से, हर क्लास से वगैरह। अगर आपको आती चीज़ है, मान लो समबडी इज गुड इन पॉलिटी, तो क्यों जा रहा है करंट अफेयर्स क्लास में भाई, तू खुद से पढ़ ले, या 2x पे 3x पे देख ले, मतलब दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ये मेरा मैथ्स था। इसलिए सी सेट में वैसे बोल रहा था, बट स्टिल यू सी डिस्पाइट हैविंग मैथ्स ऑप्शन, और मैं कैट भी क्लियर किया आराम से, स्टिल मैंने मतलब आई डू नॉट टेक इट कैजुअली, मतलब आई हैड प्रॉपर नोट्स, आई यूज्ड टू रिवाइज इट प्रॉपर, ट्रिक्स भी थे इंग्लिश के भी कि ये ट्रिक्स है, तो यू शुड आल्सो डू दैट। हाँ, बाकी बाकी यार, बाकी ऑप्शनल का मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मैथ्स का होगा तो भाई मैथ्स का स्पेशली नुकसान ही होता है, आपके पास टाइम नहीं होता है जीएस पढ़ने का, मतलब मैथ्स में लोग 320 लेके आ जाते हैं, फिर उनका जीएस खराब हो जाता है। सॉरी अगेन, बट मेरा था कि मैंने जीएस को आंसर राइटिंग बहुत करी थी मैंने, मतलब ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन करो ना जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग को खुद से करा रहे, लाइक मेरे को था कि यार आई वॉन्ट अ चैरियट, सब कोई मुझे चैरिएटर चाहिए कि वो मेरे को चढ़ा दे, मतलब अलग से मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं इधर उधर चला जाऊंगा तो मेरे को कोई ऐसा पकड़ के मेरे को दौड़ा है, तो वैसा कोर्स जहाँ पे आंसर राइटिंग 1 घंटा डेली हो रही है खुद से, या खुद से कर लो, तो दैट वे आंसर राइटिंग बार बार करो, बाकी मैथ्स से तो नुकसान ही होता है, तो दैट्स वाई यू हैव टू टेक दैट एज कि जैसे अब आपका फिर मान लो ह्यूमैनिटीज का, सोशोलॉजी या कुछ और है, और आपके उसमें 250 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, और मैथ्स में मान लो ही इज अ गुड कैंडिडेट, उसने अच्छे से बहुत एफर्ट डालना पड़ता है मैथ्स में, नहीं बहुत, तो उसके 270 280 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 30-40 मार्क्स का गैप है, ठीक है आपको फिल करना है, आप ऐसे में फिल कर सकते हो, ऐसे बहुत खराब होता है उन लोगों का। जीएस में फिल कर सकते हो, जीएस में आंसर राइटिंग आप इंप्रूव कर लो वगैरह कर लो, तो एथिक्स में फिल कर सकते हो, दैट वे आपको वो गैप फिल करना है, और इंटरव्यू में भी हो जाता है फिर, तो दैट वे आपको वैसे सोचना है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग इस बार ही, आई डोंट नो मैथ्स के ज़्यादा लोग हैं, मतलब एटलीस्ट आईएएस में, मतलब पता नहीं टॉप 80s में, तो मुझे पता नहीं कोई, तो दैट वे मतलब वो, जबकि इस बार पेपर बहुत आसान था आईएएस, इसी साइड में। हाँ, तो वही जो उनको बोला ना मैं कि पॉलिटी के जैसा लो उसको, फाउंडेशन उसका पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, शॉर्ट टेक्स मत जाओ कि एक वीडियो देख लिया मैंने, ये प्रॉपर क्लॉक का वीडियो एक दिन देख रहा हूँ, एक दिन वो देख रहा हूँ, वो नहीं, प्रॉपर उसका जो भी है 2-3 महीने का जो भी कोर्स भी यहाँ पे मिल रहा है उसको अच्छे से कर लो एक बार बस, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेक इट एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लाइक पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब अगर आप समझ लो तो धीरे धीरे यू विल इंप्रूव, और इंग्लिश वगैरह भी आता है, तो प्लान करो, स्ट्रेटेजाइज करो कि मैक्सिमाइज करना है मुझे, नॉट डेट कि वो गेम के साथ यार ये सवाल मैं तो क्लॉक इतना पढ़ के गया था और क्लॉक का सवाल है नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, नहीं हो रहा भाई, मेरे को बाकी सवाल मैक्सिमाइज करना। और 2023 तो अब्रेशन था, मतलब यार वो रेयर था, वैसे नहीं, वैसे कुछ नहीं होता, बट स्टिल उसके लिए प्रिपेयर रहना है, 2020 का पेपर आ गया तो प्रिपेयर रहना है दैट वे।
Anything else? आंसर राइटिंग के लिए यार मार्केट में हैंड रिटन टॉपर कॉपीज आने लग गई है आजकल, तो वो देख लेना. ये डेट विल गिव यू ग्लिम्स की जो मैं बताना चाह रहा था ना आपको, प्रेजेंटेशन कैसे वैल्यूएडिशन करना है, कैसे वो लिखना है, दैट विल हेल्प यू बहुत अच्छे से. बाकी तो कंटेंट तो वही रहेगा. थोड़ा बहुत आपको बाद में समझ आएगा कि यार मेंस का थोड़ा वैल्यूएडिशन चाहिए. जैसे अयान जैन का किसी ने देखा हो कि उसके जैसे 6-7 पेजेस का वैल्यूएडिशन था, इतना डेंस था वो. तो दैट वे आपको ऑटोमेटिक समझेगा कि मेरे को वैसा बनाना है. सो दैट वे वो है. बाकी मेन कंटेंट तो आपका वही रहेगा, अलग थोड़ी हो जाएगा, बट आपको समझेगा कि पॉलिटी के प्रीलिम्स के नोट्स और मेंस के नोट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है. तो वो आपको ऑटोमेटिक जब आंसर राइटिंग करोगे आपको इसलिए आपको आंसर लिखोगे, आपको समझेगा कि मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं. तो इसलिए आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए आपने. ये वेट नहीं करना है कि मेंस के नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं कि मेंस की डिमांड क्या है. कि मेंस में आपको आर्टिकल फेंकने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि आपको एक जगह पे चाहिए, आपको फेडरलिज्म के आर्टिकल एक जगह पे चाहिए, सारे आर्टिकल एक जगह पे नहीं चाहिए. सो दैट ये सब बातें आपको तब समझेगी जब आप अलग अलग मतलब वो करोगे, आंसर राइटिंग करोगे. अब फेडरलिज्म का आंसर लिखो, और आंसर में भी ना ये नहीं जैसे हम मतलब एटलीस्ट जो एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे देता है, तो उसको जब वो टॉपर की कॉपी देखता है ना उसको लगता है भाई ये क्या ही लिखा है इसने, जेनरिक जेनरिक लिखा है, क्योंकि वो ढूंढने की कोशिश करता है जो उसको नहीं पता है कीवर्ड वगैरह. बट वही सेम आंसर तुम बस क्वेश्चन देखो और खुद से लिखो 7-8 मिनट के अंदर और फिर कंपेयर करना, यू विल रियलाइज द डिफरेंस. सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज कोई टॉपर के आंसर दो या कोई हैंड रिटन आंसर लो, खुद से लिखो पहले वो आंसर और फिर टॉपर का आंसर देखो और कंपेयर करो. उसने भी जेनरिक की पॉइंट लिखे हो, कोई बाहर से आसमान से पॉइंट नहीं लेके आ रहा है. कुछ कुछ अच्छे पॉइंट लिख दे, उसको गेम समझ गया, कोई कीवर्ड डाल देगा एनसीआरबी रिपोर्ट, आपको लगेगा वाह भाई क्या लिख दिया. तो बट आप और बाकी पॉइंट जेनरिक लिखेगा, बट वो जेनरिक पॉइंट लिखने के लिए भी फ्रेमवर्क वगैरह बहुत स्पीड में सोचना पड़ता है. दैट यू हैव टू लर्न. और उसके लिए आपको वैसे उससे देखोगे अरे यार मैंने तो इतना कम लिखा है, फिर आपको समझेगा नहीं यार मैंने इतने बड़े बड़े पॉइंट लिखे, तो मैंने जो पूछा है वो लिखा ही नहीं है. फिर आप उससे सीखोगे और फिर यू विल इम्प्रूव. एनीथिंग एल्स? ओके. ओके रंगा, थैंक यू. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.